Hello students, we have started chapter number 3 Algorithm and Flowchart. So in that today we will learn about the term flowchart. So here is the definition of flowchart. Flowchart is a diagrammatic representation of a problem solving process, that is algorithm. It is called a flowchart as it charts the flow of a program. Flowchart क्या है? It is a diagrammatic representation of problem solving process. And what is problem solving process? Problem solving process means the algorithm. Means flowchart is diagrammatic representation of algorithm. algorithm का एक diagrammatic representation होगा, उसे हम flowchart कहेंगे. It is called flowchart as it charts the flow of a program. तो उसमें प्रोग्राम का एक फ्लो होता है, चार्ट्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग सिंबल्स यूज करेंगे. The main part is the direction of flow in a flowchart is always from top to bottom. So this is the important sentence. Direction of flow in flowchart is always from top to bottom. Flowchart जो होगा वो हमेशा ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा. In a flowchart, each operation is represented using specific geometrical symbols. फ्लोचार्ट में हर एक ऑपरेशन जो होगा वो दिखाने के लिए एक ज्योमेट्रिकल सिंबल्स यूज किए जाएंगे. These symbols are connected to each other by arrow to show the operations. और जो भी ज्योमेट्रिकल सिंबल्स, whatever geometrical symbols we are using in the flowchart, they will connected with each other by arrow to show the operations. उसके बीच में वो arrow से connected होगी. Following are some basic symbols that are used while making flowchart. flowchart बनाते समय ये नीचे दिए गए symbols यूज किए जाते हैं. चलो देखते हैं which are these symbols. So first is start stop box. It is an oval shaped symbol that is used at the beginning and the end of flowchart. It shows the starting and ending of the flowchart. See, this is oval symbol. तो कोई भी फ्लो चार्ट बनाते समय सबसे पहले हम ये ओवल सिंबल यूज करेंगे और लास्ट में भी ओवल होगा बिकॉज इट शोज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ए फ्लो चार्ट के स्टार्ट में भी होगा और लास्ट में भी होगा. नेक्स्ट सिंबल इनपुट आउटपुट बॉक्स. इट इज पैरेललोग्राम शेप बॉक्स that is used to indicate the input and output of a program, that is the instructions related to the input and getting the result. So this is parallelogram. This is parallelogram and this is used for input, indicate input and output of a program. मीन्स कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है या कंप्यूटर से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे पैरेललोग्राम. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग बॉक्स. दिस इज रेक्टेंगल शेप बॉक्स. It is a rectangle shaped box that is used to show the processing part of the flowchart like calculation. सपोज कुछ कैलकुलेशन करना है, प्रोसेस करना है. सपोज हमें एडिशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो प्रोसेस में होगा. ये यहाँ पे अगर नंबर्स हम ले रहे कुछ, सपोज एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, so that will be written in this parallelogram and processing part we will write in this rectangle. Next is decision box. It is a rhombus shaped box. See, this is rhombus shaped box. इसे rhombus भी कहा जाता है. Is used to check the conditions, display comparisons and take the decisions of the problem. तो फ्लो चार्ट में कहीं कुछ आपको डिसीजन लेना होता है, जैसे कि if there are two numbers and if you want to calculate or if you want to check which is the greater number between two numbers, that means here you have to take decision. So we will use this rhombus box for decision. मतलब जहाँ पे भी डिसीजन लेना होगा, यस नो टाइप क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे भी ये यूज होगा. फ्लो लाइंस. These are the arrow lines used to connect the different shapes and show the flow of logic in a flowchart. See, these are arrow lines. ये arrow lines का यूज किया जाता है ये शेप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए. उससे हमें
फ्लो चार्ट का फ्लो समझ में आता है कि कहाँ जाना है, किस तरफ डायरेक्शन का काम करते हैं। कनेक्टर्स, इट इज सर्कल शेप सिंबल दैट इज यूज्ड टू जॉइन द पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के कुछ पार्ट्स हो गए अलग अलग, तो उन पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम ये कनेक्टर्स को यूज करेंगे, और कनेक्टर्स मीन्स सर्कल शेप। सो दीज आर द शेप्स which we can use while developing or while making flowchart. So here are some advantages of flowchart. So let's see which are the advantages of flowchart. Flowchart के advantages क्या है देखते हैं। Flowchart helps in analyzing the problem in a more effective way. Flowchart से हम कोई भी प्रॉब्लम होगा वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। Analyzing problem in more effective way. This is the first advantage. Let's say second advantage. Flowchart is a better way of communicating the logic of a system. कोई सिस्टम है, मतलब कुछ काम हो रहा है कहीं पे, तो वो उसका वर्किंग कैसे हो रहा है, तो वो अच्छी तरह से समझने के लिए अगर फ्लो चार्ट है तो बच्चे अच्छे, स्टूडेंट्स जो भी है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। फ्लो चार्ट एक्ट्स एज गाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। मतलब फ्लो चार्ट एक गाइड की तरह भी काम करेगा, जो आपको गाइड करेगा, बताएगा कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। कंप्यूटर पे सपोज आपको कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको पहले उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, तो वो फ्लो चार्ट से ही आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अ फ्लो चार्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एरर्स। फ्लो चार्ट्स का यूज करके आप एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो। एरर यानी मिस्टेक्स, गलतियां। So these are advantages. Now let's see the disadvantages of flowchart. There are some disadvantages also. Sometimes the flowchart becomes complex if the program logic is quite long. कोई प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर, उसका सॉल्यूशन अगर बहुत लॉन्ग है, तो उस तरह का वो जो प्रॉब्लम होगा, जो प्रोग्राम होगा, उससे फ्लोचार्ट में दिखाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा बन जाता है फ्लोचार्ट। If you want to change or edit something in the flowchart, you have to redraw it. This is the main disadvantage of flowchart. ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्लोचार्ट का। अगर फ्लोचार्ट में अगर आपको बाद में कुछ चेंज करना पड़ा, कुछ एडिट करना पड़ा, मॉडिफाई करना है, एडिटिंग मीन्स मॉडिफाई करना है, सो यू हैव टू रीड्रॉ इट, तो ये आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा फ्लोचार्ट। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोचार्ट। So there are some rules for making flowchart. फ्लोचार्ट बनाते समय कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। कौन कौन से रूल्स है, लेट्स सी। While drawing a proper flowchart, all necessary requirements should be listed out in a logical order. कोई भी फ्लोचार्ट ड्रॉ करते समय आपको क्या करना है, जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चाहिए वो फ्लोचार्ट बनाने के लिए पहले से आपके पास होने चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए उनकी, और वो भी एक लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब यहाँ वहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे होनी चाहिए। Second is the flowchart should be clear, neat and easy to follow. Flowchart कैसे होना चाहिए, clear, neat and easy. Only one flow line should be used in conjunctions with terminal symbol. तो ये हम आगे सीखेंगे एग्जांपल्स में, जब आएंगे कंजंक्शंस, टर्मिनल्स, तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पर कैसे यूज करना है। The direction of flow in a flowchart should be from top to bottom और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस इफ यू वांट टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड बेटर। तो जो फ्लो लाइंस होगी वो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे पे वो ओवरराइड होनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए एक दूसरे से, ऐसे कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो सेपरेट होनी चाहिए। If the flowchart becomes complex, it is better to use connector symbols to reduce the number of flow lines. अगर flowchart complex हो रहा है तो वहां पर हमने connectors यूज करना है। तो connectors के लिए सर्कल यूज किया जाता है, अभी अभी हमने देखा था। तो उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ रूल्स है जो हम फ्लो चार्ट्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं।